नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली एनसीआर में भीषण कोहरे के कारण आईजीआई एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेट। मुंबई के लिए रवाना हुए पीएम मोदी एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल आज करेंगे नामांकन। दिल्ली एनसीआर में धुंध की चादर, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। सोनिया गांधी थोड़ी देर में करेंगी कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन। कुछ दिन पहले मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेली ने महाकुंभ की भूमि को वक्फ की जमीन बताया था। बागेश्वर सरकार ने हिंदुओं ने अपने धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि गीता और रामायण से ही हिंदुओं में एकता आ सकती है। इस पर बागेश्वर पीठाधीश्वर ने जगन्नाथ पुरी में आयोजित भगवत कथा के दौरान प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा, सुनिए। हमने जो बोला, तुमने जो समझा वो बात सही समझी है, और हमने ऐसा कुछ बोला नहीं। सोचो अगर तुम उनमें पैदा भय होते तो क्या होता? चाचा की बिटिया से शादी कर ले। उनके में एक ही ईमान है कि कोई ईमान ही नहीं। एक भाई साहब अभी बयान दे रहे थे, बोले ये जो कुंभ की भूमि है ये जो है वक्फ बोर्ड की जमीन है। हमें खबर मिली, फोन आया कि गुरुजी ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। हमने कहा उनसे कह दो कि तुम्हारे अब्बा की नहीं है, ये हमारे बब्बा की है। हाँ। क्योंकि इस्लाम धर्म का प्रारंभ भारत से नहीं हुआ, अरब देश से हुआ, और भारत तो गोपाल की भूमि है, तो यहां तो सब गोविंद जी का है। तो हमने तो दी है, जो तुम्हारे पास है भी वो हमारी दई भाई है। ये उदारता समझो कि हमने तुम्हें दी है नहीं तुम पे बचू हलवा है, तो तुम्हारी अलग देश है, बटे भय है। सनातन धर्म जैसा कोई दूसरा धर्म नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम एकमात्र ऐसा धर्म है जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मान करके जीता है। बाकी दुनिया के लोग व्यापार की दृष्टि से जीते हैं, हम सनातन धर्मावलंबी परिवार की दृष्टि से जीते। खबर कर्नाटक से है, जहां राज्य में एक बार फिर दलित मुख्यमंत्री की मांग उठने लगी है। हुबली में मीडिया से अपनी बातचीत के दौरान थिमापुर ने सवाल किया कि सीएम क्यों नहीं बनूं, दलितों को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हाईकमान कहेगी तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा। ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ। ಪಕ್ಷದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ಶಾಸಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ. ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಈ ದಲಿತರ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಏನಾಯ್ತು? ಪರಮೇಶ್ವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರದ್ದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ರದ್ದಿಲ್ಲ, ಆಗಿತ್ತು, ಮುಂದೂಡಿದ್ದು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರೋದು? ಈಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ದಲಿತರ ಆಗುವಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಲಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರ, ಅವರು ನಿನ್ನ ಕೂಡ ತ್ಯಾಗದ ಮಾತು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತವ್ರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತವ್ರು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ. ಹೆಂಗ ವಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ ತರಕಾರಿ ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತೀರಿ? ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಏನಂತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ವಾಟ್ಸಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವರು ನಿನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಅಲ್ಲ, ತ್ಯಾಗದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೋಡಪ್ಪ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗೈತೇನೋ ಹಂಗಾಗೈತೇನೋ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೈತೇನೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದೈತೇನೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೈತೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇನ್ ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇನು ಇಲ್ಲ, ಇಂಥ ಹೋಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದಾನಲ್ಲ,
ಈಗ ತೆಗಿತಾರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ? ಕೆಲವರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ಸದ್ಯ ಈಗ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಈಗ ಅವ್ರ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಿಟ್ಟಂತ ಏನ್ ಗಾಡಿ ಹೇಳುದ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳದಾರೆ, ಅವ್ರು ತೆಗಿತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಪ್ಪ. ಸರ್, ನಮಗೇನಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ, ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಮೊದಲೇ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಈಗ ಸಚಿವರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಲ್ರಿ, ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ತನ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಂದಿದ್ದೀರಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅದ. ಸರ್, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗೋ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತಾ? ನಾನೇ ಮಾಡೋ ಇದ್ದಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಡ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು, ಸರ್, ಈಗ ನನ್ಗದು ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ? ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ಹಸುಗಳ ಕೆಚ್ಚಲು ಕೊಯ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಸು ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ. ದಲಿತರದ ಎಷ್ಟೋ ಮರ್ಡರ್ಗಳಾಗ್ತವೆ, ಜೀವನ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಯಾವ ತರ ಬಾಯಿ ತೆಗ್ದಿದಾರ, ಎಷ್ಟು ತಾಯಿ ತಂದೆನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಅಂತ ದುಷ್ಟರಿಗೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂತ ದುಷ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದಾರು, ಎಲ್ಲ ನಮೂನಿ ದುಷ್ಟರು ಅದಾರೆ. ಅಂತವ್ರನ್ನ ಬಲಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಿವಸ ಮರ್ಡರ್ಗಳಾಗ್ತವೆ, ದಿವಸ ತಂದೆನ ಕೊಂತದ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಮಗನ ಕೊಂತದ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಇದನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಹೋಗಿದ್ದ? ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಸುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣ ಎಲ್ಲದ್ರಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣ. ಇಂಥ ಸಣ್ಣತನದ ರಾಜಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಸರ್, ಈಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಳೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಜನಪರವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸಚಿವರು ಮಾಡಿದಾರ ಯಾರು? ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇವರು RSS ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಬಂದಾಗ ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನೋವಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾ ಇವ್ರಿಗೆ? ನಾ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು? ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಅಂತೇಳಿ ಮನಸ್ಸಾರಿ ಇದಾರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಇವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳದಾವ? ಇವರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಾಂತರಗಳು ಜನ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳದಾವ. ಒಂದು ಧರ್ಮನ ಹೊರಗಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನಾ? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇನಾ? ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ಇದಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಮಾನವರನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಾದಂತ ಧರ್ಮ ನಮಗ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಏನ್ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸರ್, ನಿಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಕೆಲವು ಬಿಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವತ್ತು ಏರ್ಸುದಿದ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುದಿದ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು. ಸಿಎಂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸಿಎಂ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು? ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅವಕಾಶಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಜನ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾರಾಗ್ಬಾರ್ದು? ನೀವ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತೀಯ? ನೀನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಲ್ಲಿತ್ತೀಯ? ನೀವು ಸರ್, ಹಾ, ನೀವು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಯಾಕಾಗ್ಬಾರ್ದು? ಅದು ಆ ಸಶಕ್ತ ಅದನ್ನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಶಿಲ್ಪಿ ನನ್ನ ಆರಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನನ್ನ ಒಪ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇರ್ತವೆ. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಂತ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಶಿಲ್ಪಿ ಆದ್ರೆ ನಾನೇ ಆಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ದಲಿತ ಇದೀನಿ, ನಾನೇ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಆಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಆಗ್ಬೇಕಂತೀರಿ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ? मकर संक्रांति के पावन अवसर पर श्री मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों की संख्या में भक्त महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने पहुंचे। इस अवसर पर पूरी सांसद डॉक्टर संबित पात्रा ने भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आज सब लक्ष्मी जाए बाप मास काल नबान नहीं आसवे भार नहीं आसवे से सब भंगर जिन थव भंगर मकर बेला सैला भंगर नीति हम से गोटे भोग से नीति लगिगला काली नीति लगी ये मकर भोग ये मासक ये हम मास लक्ष्मी जाती बाप घर को गवा खाया ना दिखा पहिल लोग स्वतंत्र है माँ दिखती आज काली आस
ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନୀତି ଚାଲିବ ମକର ବେଳା ଆଜି ସବୁ ହବ ମକର ବେଳା ହଉଛି ମକର ବେଳା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ନୀତି ହବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଚାଲିବ ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେମିତି କରନ୍ତି କୋଉ ସେବାୟତ କରନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ତାକୁ ଦୈତ ରହିବେ ତାପରେ ଦିଗିତି ରହିବେ ଏମିତି 5-6 ଜଣ ସେବାୟତ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଲାଗିବ ଯାହାର ଯୋଉ ସେବାଟା ସେ ସେବାଟା କରିବେ ଦୈତ ମାନଙ୍କ ନା ଜିନିଷ ଯୋଗିବେ ସେ ତିଆରି ପାରିବେ ତିଆରି ମାନଙ୍କ ସବୁ ଆମର ସେବାୟତ ସବୁ କରିବେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହିବେ ପଢିବାକୁ ରହିବେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ ଡାକିଯିବେ ଯେମିତି ଯିବା ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ନୀତି ଯେମିତି ହଉଛି ଯେମିତି ସବୁ ଭୋଗ ବିଷୟ ଯାଉଛି ସେଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ନୀତି ହବ ସକାଳ ସରିଲା ପରେ ମକର ବେଳା ଭୋଗ ତାପରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ହବ କେତୋଟି କାରଣ ଲାଗେ ଚାରିଟାର ଭୋଗ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଓଷାକୁ ସବୁ ସୁଦର୍ଶନ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଭାବ ନୂଆ ଚାଉଳରେ ଭୋଗ ହେଇଥାଏ ନୂଆ ଚାଉଳ ଯେମିତି ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ପାଇଥାନ୍ତି ମକର ଚାଉଳ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ହଁ ପାଇବେ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ ପାଇବେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ପରମ୍ପରା ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାତ୍ରା ତେଣୁ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମକର ବେଢା ଉତ୍ସବ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ଏବଂ ମକର ଚୂଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ ଏବଂ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନୈବେଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ତେଣୁ ସେହି ପରମ୍ପରାରେ ମଧ୍ୟ ମଠ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏ ମଠରେ ଆମର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଯୋଉ ନୂଆ ଚାଉଳ ଆସିଥିଲା ସେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଇ ନଡିଆ ଏବଂ କଦଳୀ ଚକଟା ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଫଳ ସେଉ ଏବଂ ଡାଲଚିନି ସେଉ ଅଙ୍ଗୁର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ମାନେ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପକାଯାଏ କ୍ଷୀର ଘିଅ ମଧ୍ୟ ପକାଯାଏ ଯାହା ଫଳରେ କି ଏବଂ ଚିନି ପକାଯାଇ ଗୋଟିଏ ସୁମିଷ୍ଟ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମକର ବେଢା ସମୟରେ ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ ରାଧାବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଖମାର ସବୁ ସେଠିକି ହଣ୍ଡାହାଣ୍ଡିକିରି ଯାଏ ପ୍ରାୟ 60 କିଲୋ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମର 5-6 କାନ୍ଦି କଦଳୀ 100-150 ନଡିଆ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ତାପରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦକୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ତା ସହିତ ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ଆମ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ତେଣୁ ଆମ ମଠବାଡି ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଦେଖିବେ ମକର ଚାଉଳ ଆମର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଚାଉଳ ନଡିଆ ଘିଅ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ମକର ବେଢା ଗୋଟେ କରାଯାଏ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭିତର ବେଢାରେ ଭକ୍ତମାନେ ତାକୁ ଧରିକି ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ଭୋଗକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ ପାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ପରମ୍ପରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ମକର ଚୂଳ ମଧ୍ୟ ଲାଗି କରାଯାଏ ଯୋଉଟା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯିଏକି ଅବକାଶ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆଜି ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ ମକର 84 ବେଶ ତେଣୁ ଏ ବେଶ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯାହା ଭଗବାନ ମାନେ ଭୀଷ୍ମ ଯୋଉ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଉତ୍ତରାୟଣ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନ ଠାରୁ ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା हे प्रभु आमर जो अंतिम समय आसो ये उत्तरायण समय ही आमर शरीर त्याग हो एवं भगवान विष्णु सानिध्यता लाभ करने आमर ये निश्चित भाव में निजुक मुक्ति प्राप्त होगा समस्त चेष्टा हो। जय जगन्नाथ। के दिन एक बहुत पवित्र दिन है। आज इस पवित्र दिन में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के पवित्र दर्शन हुए हैं और इस दर्शन के माध्यम से पुरी के जितने भी निवासी हैं सभी ने महाप्रभु का दर्शन करके सभी ने भारतवर्ष का कैसे कल्याण हो इसकी कामना है। सर ये जो रंगोली आपने देखा है इसके बारे में क्या कहेंगे? भव्य रंगोली देखिए पुरी को श्री क्षेत्र भी कहते हैं। श्री क्षेत्र मतलब जहाँ स्वयं महाप्रभु निवास करते हैं, माँ लक्ष्मी का निवास होता है। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र भी है। उसी को आधार बनाकर कि श्री क्षेत्र की महिमा क्या है और उनके क्षेत्र में महाप्रभु कैसे निवास करते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु, बलदाऊ जी, बलभद्र महाप्रभु और सुभद्रा जी, सुदर्शन कैसे निवास करते हैं, इस पूरे विषय को इस सुंदर से रंगोली में हमारी बहनें जो हैं उन्होंने उसको परिलक्षित किया है, दिखाया है। यहाँ समुद्र देवता भी आप देख सकते हैं अभी बनाया जा रहा है
और उसके साथ साथ महाप्रसाद को भी दिखाया गया है। एक तरह से कहा जाए तो रंगोली के माध्यम से संक्रांति के उत्सव के दौरान पूरे पुरी के इतिहास और संस्कृति को दर्शाने का प्रयास और एक मैं कहूँगा सही प्रयास किया गया है। वो सफल भी हुए हैं, उनको बहुत बहुत अभिनंदन। शंकर चिन्ह महाप्रभुंकर दिव्य आयुध जो कुआଯାए से दिव्य आयुध वर्तमान आम हाथ में स्थानित होइचंती। महाप्रभु राति सारा दिव्य आयुध मान धारण करथिले। से दिव्य आयुध 16 जरी जंबुरा कईथ ठारे प्रस्तुत होइथिबा ओडिशार कुशली कारीगर माने कलारे उत्कर्षता लाभ करथिबारु आमर ओडिशार नाम होला उत्कल। तेणु से उत्कल जी होउचंती मौड़मणि सेही कालिया शांत काले नवांक वेशरे लक्ष लक्ष श्रद्धालु मानकु दर्शन देइचंती। महाप्रभुंकर ए वेश उलागी हला परे महाप्रभुंकर ए दिव्य आयुध जाउची विभिन्न प्रकार ठाकुराणी माने रहिचंती। समस्त वर्तमान याधुरु कणिकाय पाइबा पई लोलुप दृष्टि चाहि रहिचंती। तेणु तांको मध्ये लागि करा जिवो। ए होउची महाप्रभुंकर सेही दिव्य आयुध जो आयुध को चुआई कि अनेक प्रकार तांकर रहिची शास्त्र रे हमर आलोचना रहिची। तांकर वाम हस्ते जो आयुध को महाप्रभु धारण करिथांती से आयुध वर्तमान आमे नै कि जाउछे। मकर संक्रांति उपलक्षे लक्षाधिक भक्तंकर समागम होउची श्री मंदिर रे। तार पई हम तरफ व्यापक व्यवस्था करा आइची। मंदिर भितरे देखि पारिथिबे कि बहुत मुख्य भाव रे बैरिकेड हे कि आसुचंती रेगुलेटेड मैनर रे समान भीतर को जाउचंती। आ भितरे 7-5 रे जे हमर ब्लॉकिंग होउची सेठी रेगुलेट करी कि नाट्य मंडप जगमोहन को जाई कि प्रभुंकर दर्शन पाउचंती। उद्देश्य रहउची कि माने स्मूथ क्राउड रेगुलेशन आ हैसल फ्री दर्शन सब भक्त मानन को पाई वर्तमान सदा समस्त हमको कोऑपरेट करूचंती। एंड बहुत बढ़िया से समस्त प्रभुंकर दर्शन पाई पारू। सर भक्त मानकर चारि द्वार बटे प्रवेश पत्र रही तो से चारि द्वार रु सब जाक द्वार रु रेगुलेट करी कि माने भितरे क्राउड को देखि कि माने छोड़ा होउची। एंड से हिसाब रे जेमति मु कहली कि माने डिवोटीज मानकर कन्वीनियंस सेटा मुख्य रूप से ध्यान दिया होउची जेमति से माने भल से प्रभुंकर दर्शन करि परिबे। तो बढ़िया चली छी। हमर तरफ समस्त स्वागत करूछु पुरी को। हमर पुलिस रहिबो हमर मेसेज रहिबो कि पूरी पुलिस को सहयोग करन। एंड पूरी पुलिस का डिप्लॉयमेंट अपन मानन को भक्त मानन को फैसिलिटेट करिया पई होची। हमको सहयोग करन। सीनियर सिटीजन जो माने अछंती से मानन को हमें स्वतंत्र टीम हमर नै के जाई के तांकर दर्शन मध्य करौछंती। और ठीक से बढ़िया से सब जिंस चालू छी। मध्य प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप श्री अन्न के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पौला ग्राउंड छिंदवाड़ा में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय श्री अन्न फूड फेस्टिवल का भव्य शुभारंभ हुआ। मिलेट्स फूड फेस्टिवल का शुभारंभ छिंदवाड़ा सांसद श्री विवेक बंटी साहू द्वारा स्थानीय कलाकारों की गेड़ी नृत्य प्रस्तुति के बीच फीता काटकर किया गया। एक पहल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2014 में जब उन्होंने देश की कमान संभाली तब से लेकर के आप आज देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, हमारी पहचान जो कहीं ना कहीं खो गई थी उसको फिर से जीवित करने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसी में एक मिलेट्स जो श्री अन्न है, पहले श्री अन्न को यह कहा जाता था कि यह गरीबों का भोजन है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पहल करी और आज यह सबके स्वास्थ्य को लेकर के आवश्यकता है। आज भारत हमारा देखा जाए तो दुनिया में शुगर की राजधानी अगर कही है तो भारत है। हर तीसरा पेशेंट शुगर का मरीज निकल रहा है। अगर शुगर की बीमारी, बीपी और अन्य जो दूसरी बीमारी अगर उसको समाप्त करना है तो यह श्री अन्न हम सभी को अपनाना पड़ेगा, दैनिक दिनचर्या में लाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी की पहल से आप देखिए बहुत कम समय पिछले साल उन्होंने मिलेट्स वर्ष घोषित किया था और इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि उत्पादन डबल हो गया। इसका मतलब अगर उत्पादन बढ़ रहा है तो मांग बढ़ रही है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम लोग श्री अन्न को अपनाएं और इसको दैनिक जीवन में, दैनिक दिनचर्या में इसको साथ में लेकर के अपने आप को स्वस्थ रखें। मिलेट फूड फेस्टिवल जो आयोजन किए जाते हैं मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा के अनुरूप, उसका उद्देश्य ये होता है कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता हो। क्योंकि जब ये मिलेट फूड फेस्टिवल आयोजित होता है तो बहुत लोग यहाँ विजिट करते हैं, खाना खाने आते हैं, देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट किस मिलेट से बना हुआ है, किस श्री अन्न से क्या चीज बनी हुई है, उसके टेस्ट क्या है, उसका उपयोगिता हमारे लाइफ में क्या है, इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। तो निश्चित तौर पे इस तरह के जो आयोजन होते हैं उससे लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ती है,
इसके उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए भी लोग आगे आते हैं। जब ज्यादा उपयोग होता है तो किसान भाई जो इसका उत्पादन करते हैं उनके कस्टमर ज्यादा मिलते हैं तो किसान भी इनकरेज होते हैं। तो इस तरह के आयोजनों के से निश्चित तौर पर जो प्रोडक्ट है उसका प्रचार प्रसार होता है, किसानों को भी फायदा होता है, जिस प्रोडक्ट को बनाते हैं उनको भी फायदा होता है। मेरा आपके माध्यम से छिंदवाड़ा और उसके आसपास के सभी निवासियों से अनुरोध है कि अपने जीवन में श्री अन्न का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखें। थैंक यू। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस वेस्टर्न डे के अवसर पर शौर्य स्थल देहरादून में वीर शहीदों के सम्मान में पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने उपस्थित भूतपूर्व सैनिकों से मुलाकात की और देश सेवा हेतु दिए गए उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। बता दें कि राज्यपाल ने 90वें वेटरन्स डे पर पहली बार आयोजित भूतपूर्व सैनिकों की परेड की सलामी भी ली। इस अवसर पर सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी सहित कई सैनिक अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, आज 9वां वेटरन डे हम लोगों ने यहाँ पर मनाया है। कल 77वां वेटरन डे मनाने जा रहे हैं और आज महामहिम राज्यपाल सेना के सभी अधिकारियों द्वारा भारत माता के अमर सपूतों को श्रद्धांजलि दी है, जिनकी वजह से आज हम यहाँ सुरक्षित हैं। और हमारी सरकार लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। चाहे अधिकारी के रूप में अगर आप देखें, IMA की पासिंग आउट में हमारे छोटे से राज्य के 29 कैडेट पास आउट हुए थे। उत्तराखंड जैसे उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य के 52। इस बात का प्रतीक है कि चाहे सैनिक के रूप में हो, चाहे अधिकारी के रूप में हो, यहाँ का जवान देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करना चाहता है। उनके सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम जो लगभग बनकर तैयार हो गया है, अगले महीने यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को समर्पित करेंगे, जिसमें 1734 शहीद परिवारों की आंगन की पवित्र मिट्टी को हम लेकर आए हैं। 28 नदियों का जल हम लेकर आए हैं, उसको हमने अमर जवान ज्योति के नीचे किया है। उसमें धाम का मतलब एक उच्च स्थान से होता है। उसमें भारत में सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा जसवंत सिंह और बाबा के मंदिर उसमें है। और भारत माता के अमर सपूत और देश के पहले CDS जो अचानक हमें छोड़कर चले गए, उन्होंने कहा था कि चाइना पाकिस्तान हम पर एक साथ हमला करें, हमारी सेनाएं उनसे लड़ने में सक्षम है। उसका मुख्य द्वार उनके नाम पर है। और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और बच्चों सिंह धामी सरकार का संकल्प है, जिसे पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब ये सैन्य धाम बनकर तैयार होगा, उसका लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने आते हैं, इस धाम को देखने अवश्य आएंगे। और इस अवसर पर आज मैं फिर भारत माता के अमर सपूतों को श्रद्धांजलि करता हूँ, अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से। और ट्रेंड मैन पावर है और उनके अंदर में एक भावना है कि किस प्रकार हम अपने समाज के, हम राष्ट्र में, हमारे राष्ट्र के जो सपने हैं 2047 उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन पूरे समाज की जिम्मेवारी है कि किस प्रकार हम अपने वेटरन्स की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और उनको जो समाज और राष्ट्र निर्माण है उसमें किस प्रकार से उनको योगदान का अवसर मिलता है। तो मैं इस वक्त हर एक वेटरन की तरफ से भी पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को, पूरे राष्ट्र को धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो मान सम्मान आप सैनिक को और वेटरन को देते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात के अमरेली जिले में राज्य पत्रकार एकता परिषद का 31वां महासम्मेलन पाटण में आयोजित हुआ।
लाभूभाई कतरोदिया ने कार्यक्रम में कहा कि संगठन पत्रकारों की एकता के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि पत्रकार एकता परिषद उनके लाभ छीन रही है। जलिया परिवार के परशुराम भाई दहिया भाई ठक्कर परिवार ने अन्नदाता के रूप में दान देकर मानवता की मिसाल पेश की। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष लाभूभाई कतरोदिया, मनोज भाई सोनी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। રોલ લાભુભાઈ કાતરોડિયા, પ્રદેશ અધ્યક્ષ પત્રકાર એકતા પરિષદ। આજે દિવાળીના વેકેશન બાદ પ્રથમ અધિવેશન પાટણમાં, એટલે કે જ્યારે જ્યારે આ સંગઠનને બ્રેક આવી છે ને રજાની, એ બ્રેકમાંથી પાછું સંગઠનને ગતિવાન કરવાનું કામ પાટણ જિલ્લાએ પ્રથમ અધિવેશન કરીને કર્યું છે। પાટણમાં આ છઠ્ઠો કાર્યક્રમ છે, ચોથું અધિવેશન છે અને ગુજરાતનું 31મું અધિવેશન છે અને રિપીટ અધિવેશનોમાં 12મું અધિવેશન છે। ત્યારે પાટણ જિલ્લો સામાજિક સંગઠન તરીકે કામ કરે છે, સેવાની પ્રવૃત્તિઓ પણ કરે છે। ઘણી સામાજિક સંસ્થાઓના વડા આજે આ કાર્યક્રમમાં મંચ ઉપર ઉપસ્થિત રહ્યા, એમનું સન્માન કરવાની અમને તક મળી, એનું અમને ગૌરવ છે। કારણ કે સંસ્થાઓ પણ ઘણા પ્રકારની છે, માત્ર નામથી ચાલતી NGO ગાંધીનગરમાં ઘણી છે જે માત્ર સરકારની યોજનાઓ લૂંટે છે, પણ સાચા અર્થમાં સેવા કરતી સંસ્થાઓનું આજે સન્માન કર્યું, એમનો અમને ગર્વ છે। અને અમે પણ એક સામાજિક સંસ્થા તરીકે જ્યારે ઉભર્યા છીએ ત્યારે આ સંગઠન દિવસે ને દિવસે મજબૂત બને અને આવનારા કાર્યક્રમો એકબીજાની સ્પર્ધા કરીને સારા થાય અને નવા વર્ષમાં આ સંગઠનની ગતિ વધે અને સરકારમાં રજૂ કરેલા પ્રશ્નો વહેલી તકે ઉકેલ આવે, એટલી જ આશા આજની તકે રાખું છું। ગુજરાતમાં કેટલા જિલ્લાઓની નિમણૂક કરવામાં આવી છે પ્રમુખની, અને આગળના કાર્યક્રમ શું હશે? ગુજરાતમાં 33 જિલ્લામાં આપણી 34 કારોબારી છે અને 252 તાલુકામાં કારોબારી છે। પ્રદેશની મહિલા વિંગ આખી અલગ છે, લીગલ વિંગ 21 વકીલો સાથેની અલગ છે અને પ્રદેશ કારોબારી કુલ 10,000 પત્રકારો સાથે જોડાયેલું આ સંગઠન છે। અને આ સંગઠનમાં સરકાર કદાચ એક્રેડિટેશન કાર્ડ વાળાને 5 લાખનો વીમો કરી આપે, 10ની માગણી છે આપણી, પણ વીમો જે નક્કી થશે તો નોન કાર્ડ વાળા જે છે, જેની પાસે એક્રેડિટેશન કાર્ડ નથી પણ પત્રકારત્વ કરે છે, એનો વીમો લેવાની જવાબદારી આ સંગઠન લેશે। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली बड़ी खबर हरिमपुर से आ रही है, जहां हरिमपुर में 15 जनवरी से 16 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। ठिठुरन भरी सर्दी को लेकर BSA ने किया छुट्टी का ऐलान। नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चों का शीतकालीन अवकाश घोषित। स्कूल में शिक्षक पहुंचकर करेंगे शासकीय कार्य। 15 से 16 जनवरी तक जिले के स्कूल रहेंगे अवकाश। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां बागवत में तैनात डायल 112 के सिपाही धीरेन्द्र कुमार के घर में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने उनके घर से 20 तोले सोने के गहने, 1 लाख रुपए नगद और अन्य कीमती सामान चुरा लिया। चोरों ने चालाकी दिखाते हुए मकान का ताला तोड़ के बाद में अपना ताला लगा दिया, जिससे आसपास के लोगों को चोरी का पता ना चल सके। सर, नगर क्षेत्र में चोरी के बाद क्या पूरा मामला? नगर कोतवाली क्षेत्र के केशव नगर चौकी क्षेत्र में चंद्रलोक एक कॉलोनी है, उसमें एक चोरी की वारदात सामने आई है। उसमें 7 तारीख से लोग अपना ताला लगाकर अपने मायके गई थी, तो 13 तारीख को जब वो आए तो उन्होंने देखा कि उनका लॉक जो है उसकी जगह कोई दूसरा लॉक लगा हुआ है और अंदर से उनका कुछ सामान गायब है। इसमें FIR रजिस्टर कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले पौराणिक माघ मेले का विधिवत शुभारंभ हो गया है। इस बार आचारा संहिता लागू होने के कारण किसी भी राजनीतिक दल के नेता को मुख्य अतिथि के तौर पर नहीं बुलाया गया। मेले का उद्घाटन भगवान कांड देव की डोली और हरि महाराज की डोली से किया गया। मेला विगत वर्षों से जिला पंचायत के तत्वाधान में हमेशा इस मेले का आयोजन होता है और इस वर्ष भी उसी क्रम में जिला पंचायत अपनी जो एक पटकथा इस मेले की रखी है उसे तहत आगे बढ़ाई जा रही है। इस बार आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए मुख्य विकास अधिकारी को मेले की अमुक जिम्मेदारी दी गई है और बड़ी व्यवस्थित तरीके से और आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए मेले का शुभारंभ हुआ है और आने वाले दिनों में मेले के संदर्भ में जिनकी धार्मिक आध्यात्मिक जो एक पौराणिक गतिविधियां हैं उनको मेले का मंच दिखाने का काम कैमरे लगे हैं पूरे मेले क्षेत्र में, पूरे प्रत्येक एंट्री गेट पॉइंट पे। और इसमें हमें देहरादून से भी फोर्स मिला है, टिहरी से मिला है, पीएसी के प्लाटून मिले हैं और पीआरडी के 100 जवान हमको मिले हैं। तो झूला पुल पे मणिकर्णिका घाट और काश्मीर जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट है इस मेले प्रांगण में आने के लिए, इस सब में हमने ड्यूटी लगा दी है। और इस बार हम जो है ड्रोन कैमरा से भी निगरानी रख रहे हैं। सर देखा जाए तो आचार संहिता भी लगी हुई है और यहाँ पर कई जगह पे हम बैनर देख रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये मेरे संज्ञान में नहीं आया, मैं जब देखता हूँ उसको तुरंत बैनर को हटाऊंगा। उत्तराखंड के निकाय चुनाव में रायपुर क्षेत्र के वार्ड नंबर 66 से ज्वाला दत्त शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है। ज्वाला दत्त शर्मा अपनी कर्मठता, निष्ठा और जुसारू नेतृत्व के लिए क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। क्षेत्रीय जनता का मानना है कि इस बार किसी पार्टी विशेष या जाति धर्म के आधार पर नहीं बल्कि समक्ष उम्मीदवार को चुनाव में उतारना चाहेगी। ज्वाला दत्त शर्मा ने अपने वार्ड में चुनावी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी है और क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए विकास कार्यों के लिए प्रतिबद्धता है। इस चुनाव में उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर क्षेत्रवासियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। क्षेत्रवासियों मित्रों, आपको जैसे पता है मैं ज्वाला दत्त शर्मा वार्ड नंबर 66 से प्रत्याशी हूं और इस बार मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस बार चुनाव में भाग ले रहा हूं, मैं चाहता हूं कि सभी वासियों मेरे को सहयोग करें और भारी मतों से विजय बनाएं। जैसे कि ये पर्व जो है हमारा हिंदू जो सभ्यता पहला वो है त्योहार है और इस त्योहार को हम इस तरह से मनाया जाता है कि दक्षिण की तरफ से सूर्य उत्तर की तरफ को मूव करता है। तो होता क्या है कि अभी परिवर्तन आता है, जब परिवर्तन चाहते हैं तो हमारे वार्ड में भी परिवर्तन लाए और थोड़ा सा हमें मौका दें आपकी सेवा करने का। धन्यवाद। उत्तराखंड की नगरपालिका खटीमा से कांग्रेस के अध्यक्ष पद प्रत्याशी उमेश राठौर ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने क्षेत्र में घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट मांगे और विधायकों के साथ जगह जगह नुक्कड़ सभाएं आयोजित की। कांग्रेस हमसे विकास की लड़ाई लड़ती है और कांग्रेस ने यहाँ विकास किया है, उनका विकास देख रहा है कांग्रेस ने किया है और हम फिर वादा करते हैं जो भी आदेश विकास करेंगे। मैं समझ रहा हूँ लोगों के दिल में है कि कांग्रेस विकास करेगी और पहले भी यहाँ हमेशा कांग्रेस जीती रही है और आज भी मैं देख रहा हूँ कि इनका उत्साह और लगन लग रहा है कि कांग्रेस से वोट देंगे, हमेशा कांग्रेस से दिखाते रहे और इस बार भी कांग्रेस को भारी मतों से मारे। राठौर जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं चेयरमैन के, उनको भारी मतों से यहाँ की जनता, गांव के लोग, हमारे जितने भी जनजाति भाई है सब कांग्रेस के हाथ के पंजे की लगा करके कांग्रेस को भारी मतों से जिताएंगे। हमारा चुनाव प्रचार जो है 20 के 20 वार्डों में चल रहा है। हमारे कार्यकर्ता सभी लोग अलग अलग बोली में प्रचार में इसके तहत आज हमारी नुक्कड़ सभा वार्ड नंबर 18 क्षेत्र सिंधा में थी आज हमारी और बहुत जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। और जैसा कि खटीमा क्षेत्र सिंधा में मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ, लगातार इनके बीच बना हूँ पहले से पूरी खटीमा में ऐसी क्षेत्र सिंधा में और इन लोगों को मालूम है कि बॉबी राठौर जो है पहले से हमारे बीच में बना है। कोई भी समस्या हो इन लोगों के साथ हम करने से करना मिलाकर उन समस्याओं की मैंने लड़ाई लड़ी है और उसी के तहत आज उनका समर्थन है। आज इन लोगों ने सबने आज जो है मुझे आशीर्वाद दिया।
उत्तराखंड क्रांति दल के अधिकृत प्रत्याशी जसवंत सिंह बिष्ट ने शिवालिक नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस से जनता अब उब चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी को भ्रष्टाचारी करार करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं इस टाइम हूँ शिवालिक नगर पालिका में। यहाँ पे जो है यूकेडी से शिवालिक नगर पालिका से अध्यक्ष पद पे जसवंत सिंह बिष्ट जी हैं, जो इनको भारी समर्थन मिला। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि रणभूमि में उतर चुके हैं और कौन को किस किस मुद्दे के लेके उतर चुके हैं। जी बिष्ट जी, 24 में पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। आप जो है अध्यक्ष पद के दावेदारी हैं और यहाँ पे किन किन मुद्दों के लिए आपका मुख्य मुद्दा क्या है? मैं उत्तराखंड क्रांति दल का प्रत्याशी जसवंत सिंह बिष्ट, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ। मेरा यहाँ पे सबसे अहम मुद्दा है कि इस शिवालिक नगर पालिका को हकीकत में देश की सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका बनाना। अगर मुद्दों की अगर बात करेंगे तो जब सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका बनेगी तो मुद्दे अपने आप ही उसमें सारे आते हैं, हर वार्ड के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। यहाँ सबसे अहम मुद्दा जो है पानी की निकासी, साफ सफाई और अपना ये जो मच्छरों का है प्रकोप, ये यहाँ पे अहम हर वार्ड के मेरे मुद्दे यही है। तो मेरा मुद्दा सिर्फ यही है, मेरे जनता से यही अपील है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का तो आपने देख ही लिया कि उनकी हालत कितनी है। ये क्षेत्रीय मुद्दे पे लड़ने वाले चुनाव लड़ जाते हैं और इसमें जो आपको एक तीसरा विकल्प की जरूरत थी, जो तीसरा विकल्प आप देख रहे थे, उस तीसरे विकल्प के रूप में मैं उत्तराखंड क्रांति दल का प्रत्याशी जसवंत सिंह बिष्ट आपको देखूं, सामने खड़ा हूं और आपसे मैं एक अपील कर रहा हूं कि एक बार मुझे मौका जरूर दीजिए। हम वो पार्टी हैं जिस पार्टी ने इस राज्य को बनाने के लिए संघर्ष किया था। आज हम इस रण के मैदान में उतरे हैं, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए शिवालिक नगर पालिका से रण के मैदान में उतरा हूं, तो ये सोच के उतरे हैं कि हम इस राज्य को बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे और नगर पालिका का विकास पूर्ण रूप से करेंगे। भ्रष्टाचार के अकांत में डूबी हुई बीजेपी और कांग्रेस से मैं अच्छी सरकार आपको दूंगा, यहाँ पे अच्छा वो परिवर्तन दूंगा, अच्छा प्रशासन दूंगा, अच्छा शासन दूंगा। और सब जहां तक रही सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका बनाने की बात, तो उसमें पूरी ताकत लगा दूंगा, जान लगा दूंगा, ताकि हमारी पालिका का नाम एक्चुअल में पूरे क्षेत्र, पूरे देश के अंदर लोगों को लगे कि हाँ वाकई में कार्यों में नहीं, ये हकीकत में सबसे सर्वोत्तम नगर पालिका है। बिष्ट जी से मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जनता का क्या समर्थन है? जनता का समर्थन ये है कि जनता का जो बीजेपी और कांग्रेस के प्रति मुंह है वो भंग हो रखा है और वो ये चाह रही थी कि एक नया चेहरा कोई ऐसा मिले, मगर उनके दिमाग में अभी तक बीजेपी कांग्रेस ही घूम रहे थे। मगर जब वो मैं उनके पास प्रचार के लिए जाता हूँ और वोट मांगता हूँ तो उन्हें लगता है कि आप कहाँ, तब वो मेरा परिचय जानते हैं, तब उन्हें लगता है कि हाँ अब हमें एक स्वच्छ और अच्छी छवि का व्यक्ति मिलता है। मैंने उनसे साफ एक चीज कही है, देखो हमारे पास इतना धन बल नहीं है कि हम इन राष्ट्रीय पार्टी की तरह प्रचार प्रसार कर सके या पैसा बहा सके, मगर हाँ हमारे पास एक स्वच्छ छवि है जिसका हमने अपना उसी तरीके से हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता का पूर्ण समर्थन मुझे मिल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आशीर्वाद वोट में तब्दील होगा और मैं भारी बहुमत से यहाँ पर विजय होकर नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में जनता की सेवा करूंगा। बिष्ट जी से हम ये भी जानना चाहेंगे कि वादे हर नेता जो है रणभूमि में आने के बाद करते हैं और इलेक्शन के बाद वादे से मुकर भी जाते हैं, इनके बारे में इनका क्या राय है? मैं जनता से वही वादा करूंगा जो मैं कर सकता हूँ पूरा। जनता से मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं यहाँ पे सोने की सड़कें बनवा दूंगा, यहाँ पे ये कर दूंगा। मैं तो एक सेवक हूँ, मैं सेवक की तरह काम करूंगा और 24 घंटे में जनता के लिए उपलब्ध रहूंगा। ये नहीं कि भाई ठीक है हाँ रात शाम हो गई तो मैं शाम के टाइम उपलब्ध नहीं रहूंगा, रात को नहीं उपलब्ध, नहीं। जनता जब भी मुझे, मैं हारूं या जीतूं सवाल वो नहीं है, मैं जनता के लिए आज भी उपलब्ध हूँ, कल भी रहूंगा। जीतने और हारने का तो अलग विषय हो गया, पर जब भी कोई भी समस्या जनता की होगी मैं उसके लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध हूँ कि मेरे जीतने के बाद जनता को शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा कि मैं उपलब्ध नहीं रहूंगा। नारी शक्ति के लिए 24 न्यूज के चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? इस उत्तराखंड राज्य में हमारी जो मातृशक्ति का सबसे अहम योगदान है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य मिला ही हमें मातृशक्ति का दम पर है। तो मेरा मातृशक्ति से निवेदन है कि इस उत्तराखंड राज्य को बनाने में जितना अहम रोल उन्होंने निभाया, आज इस उत्तराखंड राज्य को बचाने में अपना अहम रोल फिर दोबारा से निभाएं और इसकी शुरुआत मैं चाहता हूं कि वो हरिद्वार से ही हो और शिवालिक नगर पालिका से हो, ताकि एक मैसेज बहुत दूर तक जाएगा और उससे बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पलटन बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरों का एसएसपी देहरादून ने जायजा लिया। सीसीटीवी कैमरों से नियमित मॉनिटरिंग करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।
बता दें कि महिला सुरक्षा की दृष्टि से पलटन बाजार में 22 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों में लाउड हैंडल भी कनेक्ट किए गए हैं। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी दी जाएगी। हरिद्वार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चाइनीज मांझों के विरुद्ध पुलिस का अभियान चला। एसएसपी हरिद्वार ने चलाया अभियान। खड़खड़ी क्षेत्र में वाहनों पर सेफ्टी वायर लगाए गए। टू व्हीलर चालकों को मांझे से बचाने के लिए लगाए गए वायर। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में जखोला से देहरादून जा रही उत्तराखंड परिवहन नगर की बस आज सुबह सुनकुंडी गांव के पास पलट गई। बस में लगभग 30 यात्री सवार थे। सूचना के अनुसार 7 लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी भेजा गया है। अन्य यात्री सुरक्षित हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जगन्नाथपुरी के लोकेश्वर सांसद डॉक्टर संबित पात्रा ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद लिया। बागेश्वर धाम सरकार ओडिशा के जगन्नाथपुरी में 5 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम के दौरान यज्ञ हवन और भगवत कथा का चतुर्थ दिवस पर उपस्थित रहे। डॉक्टर पात्रा ने इस अवसर पर बागेश्वर महाराज का स्वागत किया और उन्हें भगवत जगन्नाथ जी भव्य रथनाथ और ओषाढ़ शुक्ल पक्ष में आयोजित होते हैं के बारे में जानकारी दी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।